So hello all, I welcome you all in our next video of Prayag Public School, and this video is for class 8th, right? So class, today we are going to study uh, uh, notice writing in English language, right? Notice writing as well as letter writing in English language for class 8th, right? So this is the last chapter. These two are the last chapters that we are discussing in English language, and after completing these two chapters we will be completing, or we will be able to complete all the entire syllabus of English language, right? So if you remember, in our last video we have completed lesson 9, that is Jamaican fragment in literature, and that was the last chapter that we have completed in literature, and with that chapter we have completed the entire syllabus of literature, right, for term 1. So let's start. Today we are going to discuss notice writing and letter writing in English language. So let's start, class. So English language lesson 25, notice writing for class 8th. Let's proceed further. Lesson 25, notice writing. A notice is an announcement which is circulated in the written form to give some important information to a large group of people, right? So what is notice? Notice is a kind of an announcement. Announcement means a kind of an information which is circulated, means which is given or distributed in which form? In the written form, to give some important information to a large group of people. ठीक है, large group of people को जब हम कोई सर्कुलेट करना चाहते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं? नोटिस का. ठीक है. सो पर्पज़ ऑफ राइटिंग अ नोटिस. अब देखते हैं पर्पज़ क्या होता है, किस वजह से या क्या रीज़न है जो हम नोटिस का यूज़ करते हैं. अ नोटिस इज़ रिटन टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्पोर्ट्स इवेंट. ठीक है, जब हम स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या सर्कुलेट करना चाहते हैं, तब हम देते हैं नोटिस, या हम नोटिस का यूज़ करते हैं. फॉर अ कल्चरल इवेंट, राइट, अ मीटिंग और कॉन्फ्रेंस, मीटिंग या कॉन्फ्रेंस के लिए. एनी डेथ, बर्थ, विजिट बाय समवन इन फ्यूचर, इंस्पेक्शन और एक्सकर्शन. एक्सकर्शन मीन्स शॉर्ट जर्नी, राइट. सो जब किसी की डेथ होती है, बर्थ एनिवर्सरी होती है, या डेथ एनिवर्सरी, या डेथ हो जाती है कभी किसी की, देन किसी फ्यूचर में कभी इंस्पेक्शन होने के लिए, मीन्स करेक्शंस होने के लिए, या डिटेल करेक्शन इंस्पेक्शन होने के लिए, और एक्सकर्शन के लिए. एक्सकर्शन मीन्स शॉर्ट जर्नी, राइट. एनी प्रोजेक्ट फॉर अ सोशल कॉज टू बी अंडरटेकन एंड सो ऑन. एंड एनी काइंड ऑफ सोशल प्रोजेक्ट से रिलेटेड जब हम ये सारे काम करते हैं, देन वी यूज़ द फॉर्मेट, और वी यूज़ द नोटिस writing, or we take the help of a notice writing, right. Given below is a notice. As you read it, note the format and the important details which have been included, right. So नीचे एक नोटिस का फॉर्मेट दिया हुआ है. ठीक है, हम जैसे जैसे उसे रीड करेंगे हम देखेंगे कि किस तरीके का फॉर्मेट यूज़ हुआ है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसमें इंक्लूड की गई हैं. इमेजिन दैट यू आर द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, राइट. नाउ दे आर giving a condition that because under beneath this paragraph, or under this paragraph, one notice has been mentioned or written, right. So now they are giving us a situation or a circumstances, right, where we have to imagine that we are the principal of a school. Inform the students and teachers about the change in school timing due to onset of the winter season. Now the winter season is about to start, and you as you all know as a student, that in winter season always the time changes, right. The morning time especially, the school on and off time changes as compared to the summer season, right. So over here a notice has been written by the principal. Let's see what format and what important details they have used for us to give the for us to gain the information that how we should be writing a notice, right. So let's proceed further, class. Now over here the format of the like a proper format of the notice has been given, right.
सो सेंट मैरीज कॉन्वेंट, नाउ दिस इज इशूइंग अथॉरिटी, मीन्स इशूइंग अथॉरिटी मतलब जो लिख रहा है, ठीक है, जिसके पास से पूरी इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एज अ नोटिस आ रही है, मतलब सेंड की जा रही है, उसका नेम हम लिखेंगे सेंटर में, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर प्रयाग पब्लिक हमारे स्कूल से आएगी, प्रयाग पब्लिक स्कूल से, तो यहाँ पे सेंट मैरी कॉन्वेंट की जगह क्या होगा, प्रयाग पब्लिक स्कूल, बिकॉज दिस इज़ द पर्टिकुलर प्लेस विच इज़ सेंडिंग द, or this is the particular or issuing authority or particular place or particular name of the like what you can say, it is the name of the uh, organization which is sending the information to the large number of people, right? So Saint Mary's convent is the issuing authority, that means the person or the organization which is giving the notice or information. Then beneath it, मतलब उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, नोटिस, वो भी सेंटर में रहेगा एकदम. Then 5th November 2020, right? So on the extreme left hand side we will write the extreme left hand side, we will write the date, right? In the same format or in the same in the same manner as it is written in the notice itself. Then change in school hours for winter, right? Now beneath the notice we will be writing the heading. So change in school hours for winter, right? So this is the heading, because this notice is all about change in the time of the school as far as winter season is concerned, right? So change in school hours for winter, this is a heading which has been written in front of the date and below the notice, right? The word notice. Now they have started writing the notice on the extreme left hand side, from starting from the extreme left hand side below the, just below the date. So teachers and students are hereby requested to note the following changes in school timings, right? So now they have given the important information in writing, and this is a the main the main body of the notice. Then they have written old timings, then new timings, then they have mentioned the classes as well as the timing, the prior timing, right, and the new timing, right? So you can see in the box on the right hand side, which an arrow has been drawn, okay, which is reflecting content. So from teachers till 2020 below, now this is the content of the notice. All are requested to abide by the new timing with effect from 15th November 2020, right? So all are requested. Now again they have mentioned below one line that all are requested to abide by the new timings with effect from 15th November 2020, right? So the whole, starting from teachers till 15th November 2020, it is the content of the notice, which is like a, or which is definitely a information, an important information which has been circulated to a large number of people, right? Then below it is written what, P Prasad, that is signature of the authority member who has issued it. Then P Prasad name, then who is P Prasad, a principal, then principal is a designation, or you can say the post of the person who has been or who is sending the notice, or who has written the particular notice, this particular notice, right? So class, this is the particular format in which you have to write down the notice, or which is in which notice is always written in this particular format. So let's proceed further, class. Now there are some features which we have to follow while writing the notice. Let's see what are they. A notice is written within a box, right? So whatever suppose during the examination time, if I am going to ask you to write a notice, then what you have to do is you have to write down the notice first of all, and then you have to draw a box by the help of scale, a ruler and a pencil, from all four sides, right, or on all four sides of the notice, so that you can put that particular notice within the box. So a notice is written within a box. It is usually written in the third person. However, for some notices, the first person we or the second person you may be used. So first of all, we in this third person is always referred, right, or is always pointed out,
राइट. वाई? बिकॉज क्यों पॉइंट आउट होता है या क्यों थर्ड पर्सन का यूज़ होता है? क्योंकि ये दूसरे लोगों के लिए नोटिस हम ये सर्कुलेट करते हैं, तो ऑलवेज थर्ड पर्सन इज़ ऑलवेज मैंशनड in the within the notice, right? It must be short, precise and relevant to the topic, right? ये नोटिस शॉर्ट होना चाहिए, मतलब एकदम छोटा होना चाहिए. प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए, जो इसमें आप कहना चाहते हो वही होना चाहिए. फालतू की चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, और टॉपिक एकदम रिलेवेंट होना चाहिए. इट यूजुअली हैज़ अ वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स, और लगभग 50 वर्ड्स की लिमिटेशन इसमें होती है. The name and address of the issuing authority is placed at the top, followed by the word notice, the date and the heading, right? So जो नेम है और एड्रेस होता है इशूइंग अथॉरिटी का, ठीक है, वो हम लिखते हैं एट द टॉप. लाइक यू हैव जस्ट सीन द नेम सेंट मैरी कॉन्वेंट, राइट? सो दैट वाज द नेम और एड्रेस of the issuing authority. Only the name it was there, but basically we always write the name only, right? So the name and the address of the issuing authority is placed at the top. ठीक है, टॉप पे सबसे पहले उसका इशूइंग अथॉरिटी का नेम और एड्रेस होता है, और उसके बाद सीधे दूसरी लाइन में उसी के नीचे सेंटर में हम क्या लिखते हैं? नोटिस लिखते हैं, ठीक है. और नोटिस के जस्ट नीचे वाली लाइन में एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे डेट लिखते हैं, और उसी के सामने नोटिस के जस्ट नीचे क्या लिखते हैं? हेडिंग लिखते हैं. और हेडिंग वो रहेगा जो हम जिसका कंटेंट हम नोटिस में लिखेंगे, उसी की हेडिंग हम सेंटर में नोटिस के नीचे लिखेंगे. द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सिग्नेटरी अथॉरिटी शुड बी प्लेस्ड ऑन द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द नोटिस. और लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जहाँ पे हमारा नोटिस ख़त्म हो रहा है, उसी के लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में हम क्या लिखेंगे? जो सिग्नेटरी अथॉरिटी है, मतलब जो कि जिसने ये नोटिस को पब्लिश किया है या लिखा है या सर्कुलेट किया है, उसका नेम, और नीचे नेम के नीचे डेजिग्नेशन होगा, जैसे हम लेटर में लिखते हैं. द टोन ऑफ द नोटिस शुड बी ऑब्जेक्टिव, इम्पार्शियल एंड फॉर्मल. और जो टोन होगा इसमें जो भी हम लिखेंगे, जो हमारा लिखने का तरीका होगा, वो बहुत पोलाइट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव मीन्स फुल ऑफ, ये एमलेस नहीं होना चाहिए, एमफुल होना चाहिए कि इसका कोई एम है नोटिस राइटिंग का और वो सब फॉलो करेंगे. तो ऑब्जेक्टिव मीन्स एमफुल होगा. देन इम्पार्शियल मीन्स ये ऐसा नहीं होगा कि कुछ इसको फॉलो करेंगे और कुछ इसको नहीं फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होगा. ये इक्वली सब पे फॉलो अप होगा, ठीक है, सबको फॉलो इक्वली करना पड़ेगा. और फॉर्मल होना चाहिए. फॉर्मल मीन्स इन अ वेरी पोलाइट and in a very decent tone, right? So let's proceed further, class. So again we are starting with lesson 26, letter writing. So let's start. So lesson 26, letter writing. Letters are of different types: formal, informal, social letters and notes of invitation, right? Personal letters are informal letters written to family members, relatives, friends and acquaintances. Acquaintances means the family or closed ones, right? Especially the family members. So personal letters जो होते हैं वो informal letters कहलाते हैं, ठीक है, जो कि हम family members को लिखते हैं, relatives को लिखते हैं या friends को लिखते हैं. Formal letters are written to the officials of firms, editors of newspapers, principals of schools or colleges and people not known to us personally, right? और फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर्स ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जो कि हम मतलब फर्म्स, मतलब किसी कंपनी के लिए लिखते हैं, या न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं, या कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल्स को लिखते हैं, या पर्सनली उनको लिखते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, या मतलब उन इंसान को भी मतलब उन लोगों को भी जो जब लेटर हम लिखते हैं जिनको हम पर्सनली जानते नहीं हैं, वो लेटर भी किस में इंक्लूड होता है? फॉर्मल लेटर्स में. द लैंग्वेज यूज्ड इज़ कर्टियस एंड सिंपल. और जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो बहुत कर्टियस होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए और पोलाइट होना चाहिए. Notes and social letters are written for personal or official purpose depending on the occasion or the person addressed, right? और जो notes और social letters होते हैं वो होते हैं पर्सनल या ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं, या तो पर्सनल लिखे जाते हैं या तो ऑफिशियल. डिपेंडिंग किस पे डिपेंड करता है? कि जो पर्सन एड्रेस किया जा रहा है, मतलब जो ओकेशन जिस पे लेटर लिख रहे हैं या जो पर्सन एड्रेस हो रहा है वो कैसा ओकेशन है और कैसा रिलेशन है, ठीक है.
तो अगर ओकेशन अगर पर्सनल ओकेशन है और पर्सन जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं वो उसको हम अच्छे से जानते हैं तो वो पर्सनल लेटर हो जाएगा या पर्सनल पर्पस के लिए हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा ओकेशन है जहां हम इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, किसी को, और उसके बाद वो इंसान को हम अच्छे से जानते नहीं हैं, वो हमारे लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या ओनर है या एम्प्लॉय है, तो वो लेटर जो है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए माना जाएगा। दिस मे बी रिटन These may be written as invitation, notes of congratulations or as letters of thanks, right? So ये जो notes और social letters होते हैं वो invitation के तौर पे लिखा जा सकता है, notes of congratulations के तौर पे लिखा जा सकता है और letters of thanks के तरीके से लिखा जा सकता है। So let's proceed further class. Format of a letter. Now we are going to go through format of letter की format of letters कैसे होते हैं। A letter usually has 6 parts. एक्सेप्ट फॉर्मल लेटर। सो एक लेटर में नॉर्मली कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट होते हैं अगर फॉर्मल लेटर की बात को छोड़ दें तो, ठीक है। सो फर्स्ट इज द एड्रेस। द सेंडर्स और राइटर्स एड्रेस इज रिटन एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो आता है वो सेंडर या राइटर। जो राइटर है वही सेंडर भी होगा या जो सेंडर है वही राइटर भी होगा। तो सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज पे हम क्या लिखते हैं? सेंडर या राइटर्स का एड्रेस लिखते हैं। देन उसके नीचे, ठीक उसके नीचे अगेन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ऑफ द पेज पे क्या आता है? डेट आता है। द डेट इज़ रिटन इन फुल बिलो द एड्रेस। और एड्रेस के ठीक नीचे हम क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं, वो भी फुल में। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 12 अक्टूबर 2020 लाइक दिस, राइट। बट द नेम ऑफ द मंथ शुड नेवर बी रिटन इन शॉर्ट। पर हम मंथ का जो नेम रहेगा उसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जनवरी एज जैन हम नहीं लिखेंगे। आप देख सकते हो क्रॉस भी लगा हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ irrelevant or not a correct form to write the date within if we are writing a letter. So what is the correct form? That is written 12th October 2020. This is the correct form. Only in formal letters we write the subject which shows the main purpose behind writing the letter in brief, right? So सिर्फ फॉर्मल लेटर में, इनफॉर्मल लेटर में नहीं, सिर्फ फॉर्मल लेटर में हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं डेट से नीचे, ठीक है। विच शोज़ द मेन पर्पज़, जो कि क्या दिखाता है? हमारा मेन पर्पज़ दिखाता है कि पर्पज़ क्या है हमें लेटर लिखने का, या हमारा रीज़न क्या है लेटर लिखने के पीछे। सो ओनली इन फॉर्मल लेटर वी राइट द सब्जेक्ट विच शोज़ द मेन पर्पज़ बिहाइंड राइटिंग द लेटर इन ब्रीफ। अब जैसे सब्जेक्ट बहुत शॉर्ट होना चाहिए, मैक्सिमम 5 to 6 या 7 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होना चाहिए। सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल इसमें सब्जेक्ट का एग्जाम्पल कैसे दिया है? रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू लीव अर्ली। ना यू कैन से हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज़ बिन रिटन पर्टिकुलरली, राइट। सो रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू लीव अर्ली, राइट। तो अगर आप इसको, ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट है। अब किसी भी लेटर पे ये लिखा रहेगा अगर एज अ सब्जेक्ट, तो हम जान जाएंगे कि लेटर किसके बारे में लिखा गया है, या डिटेल जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो किसके बारे में, या क्या चीज़ उसमें डीपली लिखी गई होगी, ठीक है। तो किसके बारे में लिखी गई होगी? कि इसी परमिशन को लेने के लिए लिखी गई होगी, कि जल्दी जाने के लिए, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो क्या हेल्प करेगा कि हमें एक हिसाब से इस सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर लाइन को रीड करके पता चल जाएगा कि लेटर ऑफ द बॉडी का जो कंटेंट है वो क्या है। Only in formal letters the designation and address of the person addressed is written just below the date, right? और सिर्फ फॉर्मल लेटर्स में ही जो डेजिग्नेशन होता है या एड्रेस होता है, पर्सन जो एड्रेस्ड हो रहा है, मतलब उसमें और जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसका डेजिग्नेशन और एड्रेस हम कहाँ लिखेंगे? फॉर्मल लेटर में, राइट, जस्ट बिलो द डेट के नीचे। फॉर एग्जाम्पल द मैनेजर न्यूट्रिशन ड्रिंक्स लिमिटेड रामनगर न्यू दिल्ली, इस तरीके से कि मैनेजर कहाँ का है? न्यूट्रिशन ड्रिंक्स लिमिटेड का है, जो कि कहाँ पे है? रामनगर न्यू दिल्ली। जैसे हम लिखते हैं द प्रिंसिपल, राइट, द प्रिंसिपल प्रयाग पब्लिक स्कूल प्रयागराज हंडिया इलाहाबाद, राइट। तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो क्या हो, ये क्या हम क्या लिख रहे हैं? ये हम अपनी प्रिंसिपल का जो डेजिग्नेशन है, जो कि प्रिंसिपल हैं, और उनके साथ साथ और उसके साथ साथ हम एड्रेस नीचे उनका लिखते हैं, राइट। सो दिस इज़ where we have to write down below the date the designation and address of the person who is getting addressed or to whom we are writing the letter, right, in the formal letter.
So let's proceed further, class. Then comes the salutation. Now salutation is nothing but a greeting, but a kind of a greeting. Salutation कुछ नहीं, पर ये क्या है, greeting है. जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में आप रहते हो तो किसी भी टीचर को जब आप देखते हो तो आप क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरीके से बोलते हो, राइट. सो वो भी यहाँ पे क्या हो गया, ग्रीटिंग का काम करता है. कौन सा पार्ट, ये सैल्यूटेशन पार्ट जो कि लेटर में रहता है. सो द सैल्यूटेशन इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज बिलो द डेट. ठीक है. और जैसे आपने डेट के नीचे पहली बात तो आपको वो लिखना पड़ेगा जो कि आपने द प्रिंसिपल ये सब लिखा, ठीक है. उसी के नीचे डेट आएगी और डेट के नीचे क्या रहेगा, ठीक, डेट के नीचे आपका रहेगा सैल्यूटेशन. और सैल्यूटेशन क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ग्रीटिंग. द सैल्यूटेशन इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज बिलो द डेट. इट वेरीज फॉर डिफरेंट पर्सनस एंड डिपेंड्स ऑन क्लोजनेस विद द पर्सन एड्रेस, राइट. और ये वेरी करता है मतलब डिफरेंट होता है लोगों के लिए, ठीक है. ये एंड डिपेंड्स ऑन क्लोजनेस, और डिपेंड करता है क्लोजनेस पे. क्लोजनेस मतलब कि आपका रिलेशन कैसा है, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उस पर्सन से आपका रिलेशन कैसा है, आप किस तरीके से या कितने बेहतर तरीके से आप उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं, उस पे डिपेंड करता है आपका ये सैल्यूटेशन. तो यहाँ पे लिखा भी है कि फॉर फ्रेंड, मतलब दोस्तों के लिए, फॉर फ्रेंड्स हम क्या लिखते हैं, डियर स्नेहा या माय डियर सोना. फॉर मेंबर्स ऑफ द फैमिली वी राइट, या किसी फैमिली मेम्बर्स को लिख रहे हैं तो सैल्यूटेशन कैसे हम लिखते हैं, डियर फादर या माय डियर मदर, या डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर अंकल, लाइक दिस. अब ऑफिशियल्स के लिए इनफॉर्मल लेटर, जो कि फॉर्मल लेटर होते हैं, हम क्या लिखते हैं, मैडम या सर, राइट. समटाइम्स वी ऑल्सो राइट रिस्पेक्टेड मैडम और रिस्पेक्टेड सर, राइट. फॉर बिजनेस, अगर बिजनेस की बात करें जो कि इनफॉर्मल लेटर है, वी राइट डियर सर या डियर मैडम. तो ये आपका सैल्यूटेशन हो गया, दैट मीन्स ग्रीटिंग, राइट. Note, while writing informal letters, we do not write the name, designation and address of the person address, nor do we write the subject, right. तो इनफॉर्मल लेटर्स में, जब हम इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, जब हम फ्रेंड्स को लिखते हैं या किसी कलीग को लिखते हैं, या आप ये कह लो कि फैमिली मेम्बर को लिखते हैं, ठीक है. तो उस टाइम पे हम डेजिग्नेशन या जो पर्सन जिसको हम एड्रेस लिख रहे हैं उसका नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया या एड्रेस हो गया, हम ये बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, ठीक है. और ना ही हम इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखते हैं, राइट. सो लेट प्रोसीड फर्दर, क्लास. द बॉडी, दिस इज रिटन इन पैराग्राफ्स. द फर्स्ट पैराग्राफ इज एन इंट्रोडक्शन विच स्टेट्स द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर, राइट. नाउ द बॉडी, अब इन सब के बाद, सैल्यूटेशन के बाद जो मेन कंटेंट आता है वो द बॉडी होता है, मीन्स द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर, राइट. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज in this area only we write all the things which we have to write or which we want to write or which we want to get addressed by the reader or the receiver, right. दिस इज़ रिटन इन पैराग्राफ, ये पैराग्राफ में लिखा जाता है. द फर्स्ट पैराग्राफ इज़ एन इंट्रोडक्शन विच स्टेट द रीज़न ऑफ द लेटर, राइट. सो जो पहला पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन होता है जो कि स्टेट करता है क्या, रीज़न कि हमने लेटर क्यों लिखा. द सेकेंड पैराग्राफ गिव ऑल द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. फिर सेकेंड पैराग्राफ क्या होता है, ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, कि हमने लेटर जो लिखा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में. एंड द थर्ड पैराग्राफ द कंक्लूजन, और थर्ड पैराग्राफ जो होता है वो हम कंक्लूजन के तौर पे लिखते हैं, राइट. कि व्हाट वी वांट, व्हाट इज़ द कंप्लेन, और हाउ समथिंग कैन बी सॉल्व विच हैज़ बीन रिटन एज अ कंप्लेन और which has been written as a problem or problematic situations like this, right. Then come the subscription. This is written after the body of the letter and is a courteous leave taking before the letter ends, right. This is written after the body of the letter. और ये subscription part जो आता है वो body of the letter के बाद आता है. और ये courteous leave taking होता है, मतलब जब आप letter को end कर रहे हो तो उसके पहले ये सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है और बहुत कर्टियस, मतलब बहुत पोलाइटली एंड सॉफ्टली इसको बोला जाता है. ये एक हिसाब से रेस्पेक्ट देने के पर्पस में, बिकॉज वाइल राइटिंग द सब्सक्रिप्शन यू आर नॉट ओनली writing the word, it doesn't mean that you are only writing the word, but it also means that you are ending the
letter in a very decent or courteous manner, right? Before the end letter ends is written according to the relation with the person addressed or the purpose behind writing the letter. और ये सब्सक्रिप्शन उसी फॉर्म मतलब उसी वे में लिखा जाता है कि जिस वे में आपका रिलेशन है उस इंसान से जिसको आपने लेटर लिखा है, और या तो जो रीज़न था आपका लेटर लिखने के पीछे। तो उसी तरीके में इन्हीं दोनों के बेस पे आपको आपका सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है या आप सब्सक्रिप्शन को लिखोगे। योर्स इज़ रिटन विदाउट एन अपोस्ट्रोफी, राइट? सो योर्स जो है, जो आपने देखा होगा पहले लेटर में योर्स जब हम लिखते थे, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, तो वही ये पार्ट जो योर्स करके हम आगे लिखते हैं वर्ड, वही पार्ट हमारा क्या होता है, लेटर का सब्सक्रिप्शन पार्ट होता है। तो आपने नोटिस किया होगा योर्स पे आर और एस के बीच में हम अपोस्ट्रोफी लगाते थे, पर अब न्यू फॉर्मेट जो न्यू रूल है उसके अकॉर्डिंग हम योर्स पे अपोस्ट्रोफी नहीं यूज़ करते, या योर्स में अपोस्ट्रोफी हम यूज़ नहीं करते हैं। सो योर्स इज़ रिटन विदाउट एन अपोस्ट्रोफी, राइट? The details are given below. Now the details are given below. Let's proceed further. To relatives we write. अब relatives के लिए हम क्या लिखते हैं? Your affectionate son, your affectionate brother या your affectionate sister, और yours affectionately लिख देते हैं। Friend के लिए हम लिखते हैं your sincerely, yours lovingly और yours affectionately। इसमें भी आज लिखा जा सकता है। देन ऑफिशियल या बिजनेसमैन या स्ट्रेंजर्स के लिए, स्ट्रेंजर मतलब जिनको हम नहीं जानते हैं, उसमें हम क्या लिखेंगे? अगर ये लेटर हमने ऑफिशियल या बिजनेसमैन या स्ट्रेंजर को लिखा है तब हम क्या लिखेंगे? योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली, राइट? अगर न्यूज़पेपर एडिटर के लिए लिखा है तो क्या लिखेंगे? योर्स ट्रूली। अब आप इन चारों ABCD में आप देख सकते हो कि योर्स के आसपास जहाँ भी हमने योर्स लिखा हुआ है वहाँ पे कहीं भी अपोस्ट्रोफी S का यूज़ नहीं हुआ है। सो यू ऑल्सो डोंट हैव टू यूज़ द अपोस्ट्रोफी S वाइल राइटिंग द सब्सक्रिप्शन पार्ट विद इन द लेटर। द सिग्नेचर, और लास्ट में क्या आता है? सिग्नेचर। द राइटर्स नेम और सिग्नेचर इज़ रिटन विद डेजिग्नेशन इन फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर बिलो द सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन के ठीक नीचे क्या आएगा? सिग्नेचर आएगा, जहाँ पे जो राइटर है उसका नेम रहेगा, सिग्नेचर लिखा जा सकता है, मतलब कोई एक, या तो नेम या तो सिग्नेचर। पर्टिकुलरली हम रेफ़र करते हैं किसको, क्या लिखने पे? नेम लिखने पे। तो नेम रहेगा विद डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन नाम के साथ साथ डेजिग्नेशन भी रहेगा अगर वो क्या है, अगर वो फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर है। तो अगर हम कोई फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर हमने लिखा हुआ है तो उसके नीचे सिग्नेचर में हम क्या लिखेंगे? हमारा अपना नाम रहेगा और उसके नीचे हमारी डेजिग्नेशन, ठीक है? द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम द लेटर इज़ रिटन ऑन द एनवेलप, ठीक है? और जो एड्रेस पर्सन का है, टू होम द लेटर इज़ एड्रेस, और जिसको हमने लेटर लिखा है, मतलब लेटर लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी प्रिंसिपल को लिखा है या किसी डॉक्टर को लिखा है या न्यूज़ एडिटर को लिखा है, तो उनका एड्रेस जो होगा वो हम क्या किस पे लिखेंगे? एनवेलप पे, ठीक है? इन विच द लेटर is kept and the letter along with the envelope is sent to that person, right? This should be given in full, must be clear and correct, ठीक है? और जो एड्रेस होगा, नेम होगा, जो भी रिसीवर का है, एनवेलप पे लिखते समय ये पूरा फुल होना चाहिए और क्लियर एंड करेक्ट होना चाहिए, ताकि लेटर बीच में कहीं स्ट्रक ना हो जाए या इधर उधर ना पहुंच जाए। द पिन कोड शुड प्रिफरेबली बी मैंशनड, और पिन कोड हो सके तो पिन कोड भी मैंशन हमें करना चाहिए एनवेलप पे। दीज डेज वी डू नॉट यूज़ पंचुएशन मार्क्स व्हेन वी राइट द एड्रेस, डेट एंड द सैल्यूटेशन और द सब्सक्रिप्शन। और अभी अगर करंट फॉर्मेट या करंट रूल जो है लेटर लिखने का, अगर उसके हिसाब से देखें तो हम पंचुएशन मार्क्स का यूज़ नहीं करते हैं। दैट इज़ अगर कॉमा हो गया या फुल स्टॉप हो गया, ठीक है, वो कहीं भी यूज़ नहीं करते। कहाँ पे? जब एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, सैल्यूटेशन लिखते हैं या सब्सक्रिप्शन लिखते हैं तो हम कहीं भी कॉमा या फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करते हैं। ऑल दिस बिगिन राइट नेक्स्ट टू द मार्जिन, और ये सारी चीज़ें जो भी आप लिखोगे शुरू से लेकर के एड्रेस, सेंडर्स और रिसीवर एड्रेस, देन डेट, देन सब्जेक्ट, देन
salutation, then body of the letter, then subscription, then signature, all these things, whatever the main parts of this of the letters are, we all have to write down, or we all have to start each and every point from the extreme or on the extreme left hand corner of the page, right? जो जो आपकी मार्जिन होती है, ठीक उसी से एकदम मिला के या एकदम उसी के पास से हमें यूज़ करना है. नो बडी, और वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनी ऑफ द पॉइंट, these main 6 points, we are not going to start by giving a space, right? We should not be inserting, we should not be giving any space. What we have to write is, we have to start all these things by the margin only, right? So we don't have to skip any space, or we don't have to put any space, right, while writing. And all these 6 points must like should be written on the extreme left hand corner of the page, right? So let's proceed further. So class, homework, students, you all have to write and practice all the questions of notice writing and letter writing in your classwork copy, right? So like I have explained you all the things, all the contents that are necessary while writing the notice or while writing the letter writing, I have explained you in this video. So what you have to do is, you have your book with you. There are many questions for you, like there are many questions solved as well as unsolved. So practice both the questions, solved question also, unsolved question also, and practice them in your classwork copy, right? Both the questions of notice writing and letter writing. So let's proceed further, class. So students, this is where we have completed the entire syllabus of English literature and English language, right? So with on completing this, or with the completion of this, we have completed the entire syllabus of English language and literature. And in our next class, we will continue with revision part. So from our next class, we will be taking care of revision exercises, right? So meanwhile, if you have any question, if you have any problem, you can contact me, right? You can call me at any time, and you can just like share your problems or doubts or questions you have related to all the contents that we have completed for term 1 in both literature and language. And we can discuss the things, and you can get the answer from my side, right? So till then, take care and stay safe. Thank you, class.